Assalamualaikum. I'm Tahira Sami and I welcome all of you to my YouTube channel Academy Online. Dear viewers, I have done with tenses in my previous videos and today I'm going to discuss conditional sentences with you. But before starting conditional sentences, let me tell you कि वो students जिन्होंने अभी तक tenses नहीं सीखे वो मेरी previous videos देखें और tenses सीखें, then they will be prepared to learn conditional sentences. But वो students जो tenses सीख चुके हैं, they are quite well prepared for conditional sentences. So let us start. Conditional sentences are a very important topic in English grammar और हमें अक्सर conditional sentences का इस्तेमाल करना होता है. Conditional sentences have 4 types and these types are called conditional sentences type 1, conditional sentences type 2, conditional sentences type 3 and type 4 is zero conditional. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे conditional sentences type 1. हम डिस्कस करेंगे when to use conditional sentences, how to form conditional sentences and possible variations of conditional sentences type 1. मैं यहाँ ये भी क्लियर करती चलूँ कि वो स्टूडेंट्स जो अभी बिगनर्स हैं उनके लिए when to use and how to form सीख लेना ही फिलहाल काफ़ी है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो एडवांस्ड लर्नर्स हैं वो possible variations of conditional sentences type 1 भी ज़रूर सीखें. Firstly, we will discuss when to use conditional sentences type 1. For this, let us look at a small dialogue. This is John and this is Tom. John says, "Come on, Tom, if we hurry, we will catch the 9:30 bus." कि अगर हम जल्दी करें तो हम 9:30 आने वाली बस को कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं. Tom says, "There is no rush, is there? If we miss it, there will be another one in 15 minutes." कि अगर हम वो बस मिस कर देते हैं, हम नहीं पकड़ सकते तो 15 मिनट बाद ही एक और आ जाएगी. In these sentences, they are talking about future possible actions or you can say future probable actions. If we hurry, it means that कि अभी उन्होंने जल्दी नहीं की है लेकिन फ्यूचर में अगर वो जल्दी करेंगे तो वो आने वाली बस को पकड़ सकेंगे. तो if we hurry is a future possible action, बहुत उम्मीद है कि वो जल्दी करेंगे. इसी तरह अगर हम सेकेंड सेंटेंस को देखें, if we miss it, there will be another one in 15 minutes. अभी उन्होंने बस को मिस नहीं किया है लेकिन इम्कान है कि वो बस को मिस कर देंगे. तो अगर वो बस को मिस करेंगे तो उन्हें एक और बस 15 मिनट के बाद मिल जाएगी. तो if we hurry और if we miss it ऐसे एक्शंस हैं जो अभी हुए नहीं हैं लेकिन फ्यूचर में बहुत इम्कान है कि ये होंगे. तो we can say conditional sentences type 1 is used to show possible or probable future actions which may happen, which are likely to happen. Now we will discuss how to form conditional sentences type 1. For this, let us look at these sentences. If we hurry, we will catch the bus. If we miss it, there will be another one. If you work hard, you will succeed. If I throw this pen, you will catch it. तो हम देखते हैं कि इन तमाम sentences में there are 2 clauses या आप कह सकते हैं कि there are 2 parts in these sentences. पहला पार्ट if से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे पार्ट से पहले कोमा हमने यूज किया है. तो हमने यहाँ याद क्या रखना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में देयर आर ऑलवेज 2 क्लॉजेस इन वन सेंटेंस. ये आपको बताती चलूं कि इफ से स्टार्ट होने वाला क्लॉज इज कॉल्ड इफ क्लॉज और जो दूसरा क्लॉज है ये कहलाता है मेन क्लॉज या समटाइम्स रिजल्ट क्लॉज भी कहलाता है, क्योंकि ये एक्शन एक्चुअली रिजल्ट होता है इस एक्शन का. क्योंकि अगर वो जल्दी करेंगे तो ही वो बस को पकड़ सकेंगे. ठीक है, अब हमने वो पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो कौन से हैं कि देयर आर ऑलवेज 2 क्लॉजेस इन कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1. नंबर 1 इफ क्लॉज, नंबर 2 रिजल्ट क्लॉज और यू कैन से मेन क्लॉज. अब हम आते हैं टेंसेस की तरफ कि यहाँ टेंसेस कौन से यूज हुए हैं. इफ क्लॉज में हम देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है,
ये एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इफ क्लॉज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे और जो रिजल्ट क्लॉज है या मेन क्लॉज है उसमें हम देख रहे हैं कि विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इट मींस दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हमने सेकंड पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि इफ क्लॉज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे और थर्ड पॉइंट जो हमने याद रखना है वो ये है कि रिजल्ट क्लॉज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। तो देयर आर 3 पॉइंट्स जो हमने याद करने हैं। नंबर 1, there are two clauses in one sentence, if clause and result clause। second point ये है कि if clause में हम यूज करेंगे present indefinite tense और result clause में हम यूज करेंगे future indefinite tense। एक और बात भी हमने यहाँ याद रखनी है वो ये है कि sometimes हमारा जो sentence का पैटर्न तो नहीं, यू कैन से जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है कि जो रिजल्ट क्लॉज है वो स्टार्ट में होता है और इफ क्लॉज बाद में होता है। फॉर एग्जांपल, वी विल कैच द बस इफ वी हरी। तो ये सेंटेंस भी ठीक है, बस ये डिफरेंस है कि इफ क्लॉज बाद में है और जो रिजल्ट क्लॉज है या मेन क्लॉज है वो स्टार्ट में है। लेकिन इफ क्लॉज में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज किया है और रिजल्ट क्लॉज में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही यूज किया है। डियर व्यूअर्स, समटाइम्स देयर इज वेरिएशन इन कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। लेट अस लुक फर्स्ट कि रिजल्ट क्लॉज में क्या वेरिएशन पॉसिबल है, क्या वेरिएशन हो सकती है। लेट अस सी दिस सेंटेंस, इफ आई थ्रो दिस पेन यू विल कैच इट। तो इसमें देखा ये वैसा ही सेंटेंस है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया और रिजल्ट क्लॉज में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया। अब जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है तो काफी हद तक यकीन होता है, इट इज सर्टन कि जब ये एक्शन होगा फ्यूचर में तो उसके रिजल्ट में ऐसा पॉसिबल होगा, बल्कि सर्टन होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई थ्रो दिस पेन यू कैन कैच इट। अब इस सेंटेंस में देखें फर्स्ट क्लॉज तो बिल्कुल वैसा ही है, इफ आई थ्रो दिस पेन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज किया है, लेकिन जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं किया बल्कि कैन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। तो ये जो एक्शन है ये एक्चुअली एबिलिटी को शो कर रहा है। इट इज नॉट सर्टन बट इट इज शोइंग एबिलिटी कि अगर ये पेन मैं फेंकूंगी तो तुम उसे कैच कर सकते हो। इट इज नॉट सर्टन कि वो कैच करे या ना करे, बट इट इज सर्टन कि उसमें ये एबिलिटी है कि वो इस पेन को कैच कर सकता है। Let us look the next sentence. If I throw this pen, you may catch it. अब इसमें क्या है, if clause में उसी तरह present indefinite tense है, लेकिन रिजल्ट क्लॉज में हमने हेल्पिंग वर्ब में यूज किया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है जो कि शो कर रहा है पॉसिबिलिटी को कि अगर मैं ये पेन फेंकूंगी तो हो सकता है कि तुम इसको कैच कर लो। रिजल्ट क्लॉज में हमारी यही वेरिएशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम रिजल्ट क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही यूज करते हैं जो कि सर्टन एक्शन को शो करता है, लेकिन समटाइम्स हम कैन यूज करते हैं जो एबिलिटी को शो करता है और समटाइम्स मे बी यूज होता है जो कि पॉसिबिलिटी को शो करता है। अब हम देखते हैं कि इफ क्लॉज में क्या वेरिएशन पॉसिबल है। हम बार बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और रिजल्ट क्लॉज या मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा जो अदर प्रेजेंट टेंसेस हैं वो भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर एक्सपेक्टिंग विजिटर्स, अब यहाँ पर आर एक्सपेक्टिंग, यू नो दैट कि दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द हाउस विल नीड अ क्लीन। तो यहाँ तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है लेकिन इफ क्लॉज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। Let us look at the other sentence. If you have finished with the computer, I will put it away. अब यहाँ पर आप देखें हमने यूज किया है present perfect tense. However, result clause में future indefinite tense ही यूज हुआ है. Let us look at the other sentence. If it is hot tomorrow, we will go to the beach. अब यहाँ आप देखें कि if clause में टेंस यूज ही नहीं हुआ बल्कि सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस यूज हुआ है इसके साथ, इफ इट इज हॉट टुमारो, कि अगर कल
गर्मी होगी, we will go to the beach, तो हम बीच जाएंगे। What does it mean? It means that if clause में mostly तो present indefinite tense ही use होता है, लेकिन sometimes other present tenses भी use होते हैं, लेकिन present tenses not past और future tenses। Dear students, I hope so कि आपको conditional sentences की type 1 बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ऐसा है तो आप खुद एक conditional sentences type 1 का sentence construct करें और comment section में उसे write करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको conditional sentences की अगली वीडियोस भी इजीली मिल जाएं। थैंक यू।